پیارے طلاب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کو اسی طرح کلاسز دیتے ہیں. جو آج ہم پڑھانے جا رہے ہیں وہ ہے کلاس 7، سبجیکٹ جنرل سائنس، اور ٹاپک ہے فزیکل چینج. پہلے ہم بتائیں گے کہ چینج، تبدیلی، ہمارے ارد گرد کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. آکرینس آف چینجز یعنی جو یہ تبدیلی جو ہمارے بہت ساری چیزوں کے ساتھ دن میں واسطہ پڑتا ہے. اور تبدیلی کس سے کہتے ہیں، کیا یہ تبدیلی کون سی چیز ہے. Occurrence of change. Every day we came across many changes in our surroundings. These changes may involve one or more substances. For example, our mother may ask us to dissolve sugar in water to make a cold drink. Making a sugar solution is a change. دن ہمارے جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو کوئی بھی ہم بہت ساری چیزوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. جیسے کہ ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم گھر میں کبھی کبھار ہماری ماں بولتی ہے کہ آپ شربت بناؤ، ہم کیا کرتے ہیں پانی کے ساتھ تھوڑا کھانڈ ملاتے ہیں تو اور وہ بن جاتی ہے شربت. اور وہ اس کے شربت یعنی کہ وہ پانی اور شوگر یعنی کہ کھانڈ ہم نے ملایا تو وہ ایک چینج ہو گئی، یعنی ایک سولوشن بن گیا. یہ ایک چینج، اب اس کو ہم یہ ایک چینج بن گئی. پہلے شوگر تھا اور الگ پانی تھا، اب یہ شوگر یعنی ایک سولوشن بن گیا. اسی طرح اسی طرح سیٹنگ کرڈ فرام ملک از اے چینج. سیٹنگ آف کرڈ جو یہ دودھ ہوتا ہے، دودھ دہی میں تبدیل ہوتا ہے. اٹ از اے چینج، یہ ایک تبدیلی ہے. سم ٹائمز ملک بیکم سور. سورنگ آف ملک از اے چینج. کبھی کبھار یہ جو عام دودھ جو ہم پیتے ہیں یا چائے میں ڈالتے ہیں وہ دودھ وہ کبھی کبھار وہ کھٹا ہوتا ہے، وہ بھی ایک چینج. That is also a change. In this chapter, we shall study the nature of these changes. These changes are of two types. یہ جو چیپٹر ہے اس چیپٹر کا نام ہے فزیکل اینڈ کیمیکل چینج. تو یہاں پر ہم بات کریں گے فزیکل چینج، یعنی اس کی دو قسمیں ہیں، فزیکل چینج اور کیمیکل چینج. فزیکل چینج، کیمیکل چینج، یہ اس کی دو فارمز ہیں. اس کے لیے فزیکل آج ہم جو پڑھیں گے وہ فزیکل چینج کے بارے میں پڑھیں گے. جو کیمیکل چینج ہے وہ ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے. بچوں، اس کے لیے ہمیں فزیکل چینج کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ایکٹیویٹی لینی پڑے گی. ایکٹیویٹی ہم آپ کو اس طرح بھی سمجھ آئے گا. ایک پیپر شیٹ ہم لیں گے، یہ پیپر شیٹ ہے، اور اگر ہم اس پیپر شیٹ کو پھاڑیں گے یعنی اس کو سکیئرز بنائیں گے ایک طریقے الگ الگ، اس کو سکیئرز بنائیں گے تو یہ پیپر شیٹ ہے. تو یہاں پر ہم اس کو کاٹیں گے، ایک سکیئرز بنائیں گے، 2-3 سکیئرز. اس طرح تو یہ برابر یہاں پر آئے گا. ہم نے اسی طرح کاٹا، اس سکیئر میں بولتا ہوں اس طرح. کٹ پیس آف پیپر ان 4 سکیئر پیسز. ہم نے 3 ہی کاٹے، اب 4 بھی ہم کاٹ سکتے ہیں. کٹ ایچ سکیئر پیس 4 into 4 سکیئر پیسز. اس کو ہم 4 میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں، 5 میں بھی، 6 میں بھی. اس کو ہم 6 میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں، 7 میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں، 8 میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں. 8 ٹکڑے اس کے بنا سکتے ہیں. Lay these pieces acquire the shape of the original piece of paper. Cut each square piece 4 into 4 square pieces. Lay these pieces acquire to the shape of the original piece of paper. اس طرح اس کو ہمیں شکل دینی ہے، یا فلور پر رکھنا ہے یا کسی ایسے بینچ پر رکھنا ہے تاکہ ان کی اوریجنل شکل واپس آئے. Obviously, we cannot join these pieces to make the original piece, but is there a change in the property of paper. بالکل ہم نے
फर्श पर रखा, इसी तरह ये काटा हुआ है, लेकिन जब हम इसको, ताकि ये फिर अपनी ओरिजिनल फेस में वापस आए, लेकिन हम इनको जोड़ नहीं पाते हैं। यानी जब हमने ये उठाया, ये अलग उठा और ये अलग उठा, जो भी पीसेस हमने किए ये अलग अलग उठे। तो इसलिए, लेकिन इसको तो कोई, ये जो पेपर है इस पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई तीसरा चीज़ नहीं बना, वही टुकड़ों में तब्दील हुआ, कोई तीसरा चीज़ नहीं बना, लेकिन इसको भी एक चेंज, यानी एक चीज बन के इसको हमने काटा, इट इज आल्सो ए चेंज। इसी तरह हम और एक एक्टिविटी भी ले सकते हैं और एक काम भी कर सकते हैं बच्चों। इफ वी कलेक्ट द chalk dust lying on the floor near the blackboard in our classroom or crush a small piece of chalk into dust। अगर हम पहले आज से 2 साल पहले हमारे क्लासरूम में काला ब्लैक बोर्ड होता था और चाक हम इस्तेमाल करते थे, आज हम ये पेन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम इसी तरह वो हम ऊपर लिखते थे, नीचे वो बोर्ड के नीचे आता था, यहाँ पर जमा होता था। अगर इस तरह नहीं तो हम कोई एक चाक पीस लेंगे, उसको क्रश करेंगे, उसको छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे। जो ये छोटे छोटे पीसेस हैं, जब इनको इकट्ठे करेंगे, थोड़ा पानी उसमें डालेंगे, वाटर, थोड़ा पानी उसमें डालेंगे, चाक हम लाएंगे, उसको हम क्रश करेंगे, चाक डस्ट बनाएंगे, तो फिर उसमें थोड़ा वाटर मिलाएंगे। जब हम इसको गूंदेंगे तो गूंदने के बाद उसको फिर वही शक्ल देंगे, यानी कि चाक शक्ल देंगे, तो वी गेट ओरिजिनल, हम उसी तरह वो चाक बना सकते हैं। यानी आफ्टर ड्राइज, ये जब वो सूखेगा तो हम फिर वही चाक हासिल हो सकते हैं, वो हो जाएगा। इट इज़ ए चेंज। इफ वी कलेक्ट द chalk dust lying on the floor near the blackboard in our classroom or crush a small piece of chalk into dust, add a little water to the dust to make a paste, roll it to the shape of a piece or chalk after dry we will recover chalk from the dust। जो हमने मैंने यहाँ पर आपको पहले बताया कि जब अगर हम चाक लाएंगे, उसको हम क्रश करेंगे, फिर उसके साथ थोड़ा पानी मिलाएंगे, वो फिर उसको गूंदने के बाद हम थोड़ा उसको जो शेप देंगे चाक की शक्ल, जैसे वो पहले राउंड था या किस तरह का था, राउंड ही होता है, तो उस वक्त फिर वही चाक हम हासिल कर सकते हैं। इट इज़ ए चेंज। इसी तरह हम और एक एक्टिविटी भी लिख सकते हैं। इफ वी टेक सम आइस इन ए गिलास और टम्बलर, अगर हम कोई गिलास लेंगे या एक गिलास लेंगे, टेक सम आइस इन ए गिलास, इसमें हम पूरा डालेंगे गिलास टम्बलर में, इसमें आइस रखेंगे, मेल्ट ए सम पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द गिलास टम्बलर इन द सन। अगर हम इस पर सूरज या हम गर्मी में रखेंगे, बाहर रखेंगे, गर्मी में रखेंगे, तो यहाँ पर ये मेल्ट हो जाएगा, ये पिघलेगा, और यहाँ पर इसको पानी, यानी कि जो आइस है वो पिघलता है गर्मी से, तो जब ये यहाँ पर हमें हासिल होगा, यहाँ पर एक इसमें आइस भी होगा और थोड़ा पानी भी होगा। वी हैव नाउ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। हमें यहाँ पर जब इसको सन में रखेंगे, गर्मी देंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा आइस भी और वाटर भी, मिक्सचर उनका दोनों इसी में होंगे, इसी टम्बलर, इसी गिलास में। नाउ प्लेस द टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर। अगर हम फिर इसी को, जो हमने मिक्सचर यहाँ पर बना, फिर हम इसी को यहाँ पर फिर फ्रिज में रखेंगे या सर्दी में रखेंगे, वी विल गेट, आफ्टर दैट वी विल गेट सॉलिड आइस अगेन। जब हम इसको फ्रीजिंग देंगे, इतनी सर्दी देंगे, तो हमें फिर वो वैसा ही आइस बाद में मिलेगा। तो इस तरह से हमें, यानी कि इट इज़ आल्सो ए चेंज, हमें कहने का मतलब है इट इज़ आल्सो ए चेंज। ये सॉलिड, ये पहले वाटर में था, और अगर हम यहाँ पर आइस भी में रखा इसमें, तो ये दोनों मिक्सचर हमें यहाँ पर मिला। फिर हम गर्मी के बाद फिर हमने इसको गर्मी दी, तो फिर ये यहाँ पर फिर तब्दील हुआ पानी में, और इसके बाद फिर फ्रीजिंग में हमने डाला, तो फिर ये आइस बन गया। तो इस तरह यही मतलब चीज़ तो यही है, यही चेंज, यानी इट इज़ आल्सो ए चेंज। एक्टिविटी 4 बच्चों, और एक एक्टिविटी भी हम ले सकते हैं। बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर। इन ए कंटेनर, एक बीकर में हम एक गर्म पानी रखेंगे,
we see the steam rising from the surface of water. यानी गर्म पानी उसका तो स्टीम ही आएगा, यानी उसका भाप बाहर आएगा. Hold an inverted pan by its handle. जब हम इसको एक पैन रखेंगे, एक तवा रखेंगे ऊपर, over the steam at the same distance from the boiling water, observe the inner surface of the pan, we will see droplets of water there. जब हम इसको तवा इसके ऊपर रखेंगे तो इसके तवे के ऊपर फिर हम देखेंगे इसके ऊपर वो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होंगे, यानी कि जो गर्म पानी इसका जो ये भाप ऊपर उठता है ये इस तवे पर लगता होगा, यानी कि कंडेंसेशन होगी, तो ये यहाँ पर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हम देखेंगे. तो ये चेंज हो गया, यही बॉइलिंग वाटर जो है ये चेंज हुआ है, यानी कि इसको एवापोरेशन के जरिए एवापोरेशन हुई तो फिर कंडेंसेशन हुई, तो फिर यहाँ पर ये चेंज हो गया इसमें भाप में. इसी तरह इन एक्टिविटीज 1.1 और 1.2 we saw that paper and piece of chalk underwent changes in size. हमने एक्टिविटी 1 में और 2 में देखा कि जो साइज में कोई भी चीज़ साइज में शक्ल में तब्दील हो जाए, जैसे कि पेपर, पहले एक्टिविटी में यहाँ पर हमने पेपर काटा तो वहाँ पर वो चेंज हो गया, उसका जो पेपर था वो फिर अपनी ओरिजिनल हालत में फिर हमने किया, लेकिन वो वहीं पर रहा, लेकिन जो उसका जो एक चेंज आ गई, यानी कि उसके जो टुकड़े हुए थे वैसे ही रह गए, लेकिन वो हमने उसको जोड़ने की कोशिश की लेकिन वो जुड़ नहीं पाया, लेकिन और कोई तीसरा चीज़ नहीं बना. इसी तरह 1.2 में हमने देखा that paper and a piece of chalk underwent changes in size in activities 1, यानी कि दूसरी एक्टिविटी में हमने देखा कि चाक पाउडर हमने लिया था, फिर उसको फिर हमने बनाया, यानी उसको फिर जो हमने इकट्ठे किया या उसको क्रैश किया तो फिर डस्ट पाउडर आ गया, फिर हमने उसमें वाटर मिला दिया, फिर हमें वही मिला, यानी कि फिजिकल चेंज जो हमें ज़ाहिरी फिर वही मिल गया. इसी तरह एक्टिविटी 1.3 एंड 1.4 में हमने देखा एक्टिविटीज 1.3 एंड 1.4 वाटर चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. एक्टिविटी 3 और 4 में हमने देखा कि ये जो वाटर है ये सॉलिड में चेंज हो गया और सॉलिड से फिर आइस में हो गया, यानी फिर लिक्विड में तब्दील हो गया, लेकिन जो इसकी ज़ाहिरी हालत फिजिकल हालत जो इसकी ज़ाहिरी हालत वो वैसी की रही, यानी इसमें और कोई तीसरा चीज़ नहीं बन गया. कहने का मतलब यह है इन प्रॉपर्टीज फॉर दीज एबो एक्टिविटीज फॉर दीज, यानी इन छोटी सी मिसालों के ज़रिए हमें ये महसूस होता है प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस और कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. किसी भी चीज़ की शेप, शक्ल, साइज, उसका जो साइज होगा, कलर यानी कि रंग, या भी उसका भी कोई भी चीज़ शेप के, साइज में, कलर, रंग के ज़रिए किसी भी चीज़ की जो हालत है वो तब्दील हो जाए लेकिन चीज़ वही रह जाए, उसी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं. ए चेंज, फॉर एग्जांपल, ए चेंज इन विच a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. यानी जिस तरह हम और एक चेंज भी और एक मिसाल भी दे सकते हैं. एक लॉग को हम ले सकते हैं तो हम उसको फाड़ेंगे, तो जब हम उसे फाड़ेंगे फिर हम इकट्ठे करने की कोशिश करें, वो इकट्ठा तो हो जाएगा लेकिन उसके जो पीसेस है वो वैसे के तैसे रह जाएंगे. इसी तरह लेकिन और कोई तीसरा चीज़ से इसको नहीं बन गया. इसी तरह जब हमने इन एक्टिविटीज के जरिए हमने ये पाया कि जो कोई भी चीज़, जो कोई भी सब्सटेंस शेप एंड साइज में तब्दील हो जाए, शक्ल में तब्दील हो जाए, उसका रंग बदल जाए, रंग और हो जाए, या आइस, जैसे कि यहाँ पर हमने वाटर का लिया, वाटर तो फिर पहले सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, ये तब्दीली हो गई यहाँ पर, लेकिन वो चीज़ फिर वही वापस आ सकते हैं. यानी दीज चेंजेस कैन बी इरिवर्सिबल, यानी वो चेंजेस वापस भी आ सकते हैं, जैसे कि पानी, वाटर, ये एवापोरेशन, इसको सॉलिड भी बन गया, लिक्विड भी बन गया और वेपर भी बन गया, गैस भी बन गया. इसी तरह
physical change is also reversible, جو ہم نے ابھی پڑھا یعنی کہ ریورسیبل بھی ہو سکتی ہے. In such a change no new substance is formed, یعنی وہ سبسٹینس جس سے اور کوئی تیسرا چیز نہ بن جائے. تو کل ہم فزیکل چینج کے بارے میں ہم نے پڑھا، تھوڑا کچھ پڑھا، اور کل ہم انشاءاللہ